Hello and good evening, everyone. I am Dr. Komal Lalwani and I welcome you all on behalf of Nationwide Quality of Care Network to today's Community of Practice session. Today's session is very special and it is on delivering quality at primary healthcare settings, a panel discussion with the primary healthcare workers. So before moving forward, I would like to introduce Ms. Shrija Vijayan, who is the professor in HOD of Child Health Nursing at Koithram College of Nursing, Indore. She has 15 years of experience in teaching, research, administration, and direct patient care. She is a national QI mentor for Nationwide Quality of Care Network in collaboration with NHM MP and UNICEF MP. She is a quality improvement mentor for Lakshya Project at Ministry of Health and Family Welfare, Government of India for medical colleges. She has more than 15 research publications in various index journals. She has done her fellowship in neonatology nursing from National Neonatology Forum as a gold medalist. She has done her master's in pediatric nursing from DAVV Indore and postgraduate diploma in child, adolescent, and family counseling from Kerala University. I welcome you, ma'am, and would request you to please welcome our today's speakers, or the panelists for this session. Thank you, Dr. Komal. Once again, I welcome you all in today's session. Our first panelist is Ms. Uma Devi Jangia and her team. She's a nursing officer in Mandla District Hospital, MP. Our second panelist is Ashwini Boradiji. She's a ASHA facilitator at Primary Health Center, Wardha, Maharashtra. And Ms. Charushila Gode. She is also the ASHA facilitator and Primary Health Center, Gode, Wardha, Maharashtra. And we have among us Ms. Geeta Raniji. She's an auxiliary nurse and midwife. She works in a Keshapuram dispensary at New Delhi, and she's also a Florence Nightingale awardee. So I welcome you all in today's session. Now we are moving to some short stories of QI that they have experienced in their own field after trained in POCI. I request Komal ma'am to please play the videos. Sure, ma'am. So now we will play the recorded videos of experience sharing by the frontline healthcare workers who have been trained in point of care quality improvement. Let's listen to them. Hello and good evening to all present in this meeting. Myself, Uma Devi Jangela from Mandla, Madhya Pradesh. I am posted as a nursing officer in Special Newborn Care Unit in District Hospital, Mandla. I am working in this unit from last 9 years. Today, I am here to share my experience related to quality improvement. Point of care quality improvement के बारे में हमने पहले 2018 के पहले नहीं सुना था। फिर मैंने और मेरी कलीग ग्रीष्मा ठाकुर ने अगस्त 2018 में जबलपुर में इसकी ट्रेनिंग ली, जिसमें जो मेंटोर थे डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, डॉक्टर विक्रम दत्ता, डॉक्टर मेहताब सर ने हमें क्यूआई मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया। उन्होंने हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की 4 इजी स्टेप्स बताए, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम जो अपनी प्रॉब्लम रहती है अपने सेटअप में, हेल्थ सेटअप में बहुत सी प्रॉब्लम हम फेसेस करते हैं, तो हम उसमें से कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर सेकेंड में उसको एनालाइज करें और थर्ड स्टेप में डेवलपिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस और फोर्थ में सस्टेन इम्प्रूवमेंट। इन 4 स्टेप्स के बारे में बताया। फिर हमने ट्रेनिंग ली जबलपुर में। उसके बाद हम जब अपनी यूनिट में आए तो वहां पर हमने जो अदर स्टाफ थे हमारे यूनिट के, उनको हमने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, ट्रेनिंग के बारे में बताया और यहाँ पे भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाने के बारे में बात की। तो सभी लोग एग्री हो गए। तो सभी स्टाफ मेंबर थे, उन लोगों को भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए बताया अपने सेटअप में। तो सभी लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। इसमें से बहुत सेवरल 4-5 प्रॉब्लम थी, उसमें से हमने अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। फिर हमने टीम बनाई, जिसमें हमारे टीम में 5 मेंबर थे स्टार्टिंग में। फिर हमने अपना जो एक स्मार्ट एम स्टेटमेंट थी हमारी प्रॉब्लम की, वो थी टू इंक्रीज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग
in healthy neonates delivering at district hospital Mandla from 70 to 90% in 4 weeks. ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम को हमने प्रायोरिटाइज किया, उसको फिर हमने एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो हम एनालिसिस के समय सोचे कि हमारी फैसिलिटी में ऐसा क्या हो रहा है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्यों गैप हो रहा है कि बच्चे शुरुआती तौर पे जो स्तनपान होता है बच्चों में उससे छूट रहे हैं बच्चे। तो हमने डिलीवरी, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद जो हमारी प्रोसीजर रहती है, जो प्रोसेस, तो हमने उसके लिए टूल्स इस्तेमाल किया। तो फर्स्ट हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने पाया कि हम आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद हम उसको मदर के एब्डोमेन में रखते हैं। फिर उस बच्चे को इमीडिएट ड्राइंग के बाद उसका वेट लेते हैं, विटामिन का एडमिनिस्टर करते हैं, फिर बेबी को बर्थ कंपेनियन को दे देते हैं। और उनको एडवाइस कर देते थे कि आप बच्चे को दूध पिलाना है, डकार दिलाना है, पर उसका कोई फीडबैक नहीं लेते थे कि पिलाया उनने कि नहीं पिलाया। कुछ पिला भी लेते थे प्राइमरी मदर जो पहली बार माँ बनी है और जिनके साथ कोई ज्यादा लोग नहीं, बर्थ कंपेनियन नहीं है, तो उन लोग क्या फीड नहीं करा पाते थे। तो हमने अपने प्रोसेस फ्लो चार्ट के थ्रू हमने अपने प्रोसेस को चेंज किया। हमने आफ्टर डिलीवरी बच्चे को मदर के एब्डोमेन में रखा, इमीडिएट ड्राइंग के बाद बेबी को स्किन टू स्किन केयर में रखा, और वहीं पर हमने उसको तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग कराया। इससे क्या हो गया, हमारे स्किन टू स्किन केयर भी हो गया, बच्चा हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट हो गया, और डिले क्लॉट कैंपिंग भी हो गई। फिर हमने बच्चे को का वेट लिया, फिर उसके बाद विटामिन के लगाने के बाद ही बर्थ कंपेनियन को दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, जो बच्चे जो छूट रहे थे, जो बच्चे नहीं ले पा रहे थे, वो भी 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध मिलने लगा। पर इससे क्या हो गया, हमारा वर्कलोड बढ़ गया। हमने मतलब इससे पीडीएस से हम लोग वर्क किया इस पे, तो हमारा AIBF तो इंक्रीज हो गया 2 वीक्स में, लेकिन हमारा क्या था, वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि फीडिंग हमें ही करानी पड़ती थी पूरा वर्क। तो हमने इसका सेकेंड टूल फिशबॉर्न पे वर्क किया। तो उसमें हमने 4P, पर्सन, पॉलिसी, प्रोसीजर प्लेस, इसमें हमने वर्क किया। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि आखिर में मदर खुद से क्यों नहीं पिला रही, हमें क्यों पिलाना पड़ रहा है मदर बेबी को फीड। मदर खुद ही एग्री हो कि मुझे अपने बच्चे को 1 घंटे का दूध पिलाना है। तो हमें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम पता चली। तो फिर हमने उन प्रॉब्लमों को देखते हुए हम लोगों ने काउंसलिंग पॉइंट बनाए। हमने मदर के साथ जो उनकी सास रहती है, बर्थ कंपेनियन लोग रहते हैं, उन सबको हमने काउंसलिंग करना स्टार्ट किया। इस काउंसलिंग के समय वहाँ आशा कार्यकर्ता भी रहती थी, तो उन्हें भी सब बताया। तो फिर क्या होता था, तो ये काउंसलिंग हमने यूनिक काउंसलिंग के 10 पॉइंट्स बनाए और उनसे काउंसलिंग करना स्टार्ट किया। तो इससे हमको काफी रिजल्ट मिला, वर्कलोड भी हमें ज्यादा नहीं हुआ। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप है अपना, जो डेवलपिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस, उसमें हमने बहुत सारे PDSA में वर्क किया। हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 10 PDSA में काम किया है, जिसमें से हमने 3 तो अबेंडेंट हो गए PDSA, 2 अडॉप्टेड हुए और 5 PDSA हमने अडॉप्ट किए हैं। तो जिसमें से हमारे जो सक्सेसफुल PDSA रहे हैं, तो उसमें तो था कि EIBF, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर वेट एंड विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा फर्स्ट था, जो इस पे हमने वर्क किया। सेकेंड था प्रोवाइडिंग यूनिक काउंसलिंग टू एंटीनेटल मदर एंड एंटीनेटल वार्ड एंड लेफ्ट केसेस सून आफ्टर डिलीवरी। फिर हमने इस काउंसलिंग को हमने पहले वर्बली स्टार्ट किया, फिर हमने सोचा कि इसको वर्बली बोलने से अच्छा फ्लिपकार्ट के थ्रू दिखाएं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, विजिबल भी होगा। तो हमने यूजेस ऑफ फ्लिपकार्ट फॉर एंटीनेटल काउंसलिंग। फिर हमने अपने ये जो हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि डाटा ट्रैक करने के लिए हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर हमने आशा वर्कर को इन्वॉल्व किया। हमने सोचा कि हम तो यहाँ पर काउंसलिंग कर ही रहे हैं, फीडिंग हो रही है, पर यदि माँ लोग सब क्या है पेरीफेरी से आती हैं, पेरीफेरी में आशा कार्यकर्ता रहती है, ANM रहती हैं, तो इन लोगों से ज्यादा अटैचमेंट रहता है, 9 मंथ तक उन लोगों के साथ बॉन्डिंग बन जाती है। तो यदि वो लोग काउंसलिंग करें अपने फील्ड में, अपने एरिया में, कि आपको बच्चे को 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना है बच्चे को, तो वो लोग को वहां पर भी एक बार काउंसलिंग हो जाएगी, एक बार हो जाएगी जहाँ पर डिलीवरी हो रही है, तो बच्चे को फीडिंग मिलेगी ही। तो इस प्रकार हमने इसी को सस्टेन कर लिया। फिर हमने अपने 4th स्टेप में हमने ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला की पॉलिसी बना ली कि जो भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला में डिलीवरी होता है उसको 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना अनिवार्य ही है। तो ये फिर इस प्रकार हमारा जो फॉलोअप, हमारा EIBF का रेट है
अभी का रिसेंट का है 90 है, 92%, ऐसा ऐसा चल रहा है। फिर हमने, हमारा ये तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, फिर हमारा ये सक्सेसफुल रहा। फिर हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट फॉलो अप में वर्क किया, तो ये हमने अगस्त 2019 में स्टार्ट किया था। फिर क्या, कोविड एरा आ गया, तो उस वजह से क्या है, फैसिलिटी फॉलो अप डिक्रीज हो गए, क्योंकि आफ्टर डिस्चार्ज के बाद कोई हॉस्पिटल नहीं आना चाहता कोविड के टाइम्स में। तो उस समय हमारा 2020 और 21 में फॉलो अप डिक्रीज हो गए। फिर हमने अगेन स्टार्ट किया 2022 में, तो अभी हमारा फॉलो अप रेट भी 72.09% है। तो मैं ये आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हेल्थ सेटअप में, जो हॉस्पिटल सेटअप में रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं पेशेंट केयर रिलेटेड, और मैक्सिमम ये होता है कि बहुत कम स्टाफ रहते हैं, रिसोर्सेज कम रहते हैं, मिनिमल रिसोर्सेज रहते हैं, सफिशिएंट स्टाफ रहते हैं, बजट इशू रहता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के द्वारा क्या रहता है, हम ये सब चीजों को ओवरकम कर देते हैं। ये सब चीज क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के द्वारा क्या होता है, हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही नहीं देख पाते। तो अब जब हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट के स्टेप्स में काम करते हैं ना, तो हम ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करते हैं, पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही बस नहीं करते, हम उसके साथ साथ प्रॉब्लम के साथ साथ इसके सॉल्यूशन को भी देख पाते हैं। और जो हेल्थ हॉस्पिटल सेटअप में जो प्रॉब्लम वाला जो ताला है ना प्रॉब्लम का, उसकी की है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसके द्वारा क्या है, हम बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और जब हम इस पे वर्क करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत बड़ी लगती है, फिर जब सॉल्व हो जाती है इसके थ्रू, तो लगता है अरे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, फालतू का ही टेंशन था, है ना। और मिनिमल कम स्टाफ में भी काम हो जाता है। तो थैंक्स टू ऑल पॉइंट ऑफ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर दिस अचीवमेंट, कि हमारे सेटअप में 2 प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली रन किए और उनके परसेंटेज भी हमारे यहाँ इंक्रीज हुए। एंड थैंक्स टू ऑल NQCN मेंबर फॉर दिस अचीवमेंट। मैं श्रीमती रुक्मणी जंगेला ANM सेक्शन जहरमऊ से बोल रही हूँ। मैम, मैं राजकली सयाम सेक्टर जहरमऊ ग्राम जहरमऊ में आशा कार्यरत हूँ, आशा कार्यकर्ता पदस्थ हूँ। श्रीमती फूलवती हुई के ग्राम सिमरिया की आशा कार्यकर्ता। मैं निर्मला जंगेला ग्राम जहरमऊ में हूँ। मेरी आशा 15 है और मैं आशा पर्यवेक्षण में काम कर रही हूँ सेक्टर जहरमऊ। हमें सिस्टर उमा जंगेला के द्वारा 28/11/2018 को बताया गया था, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बताई थी करते हैं। उसमें हमें 4 चरण के बारे में बताया जाता है कि किसी समस्या के बारे में बताया जाता है, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर योजना तैयार करना और उसमें सुधार करना, उस योजना को बनाए रखने के बारे में भी बताया जाता है। और हमें बताया गया था कि उमा सिस्टर के द्वारा कि बच्चे को किस प्रकार बीमारियों से उसको और उसकी माँ को बचाया जा सकता है, और जो भी समस्याएं आती है जो दूध पिलाने से माता की दूर हो जाती है, और बच्चे की भी इस बारे में भी बताया गया था। बच्चे को किस प्रकार दूध पिलाना चाहिए और बच्चे किस स्थिति में होगा तो अच्छा दूध पिएगा, इस बारे में भी जानकारी दी जाती है। माँ यदि दूध पिलाती रहेगी बच्चे को तो माता गर्भवती नहीं हो पाएगी जल्दी। इसके बारे में भी हम समझाते हैं और विजिट भी करते हैं, बार साथ दौरे भी करते हैं, जाकर देखते भी हैं उनको कैसा बच्चे को कैसी स्थिति में रख रहे हैं, बच्चे को साफ सफाई से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और उनके नाभि नाल भी देखते हैं। हम ट्रेनिंग अटेंड करने से हमें और अच्छी मतलब शिक्षा मिलेगी और हम आगे अपने कार्य में और अच्छे से कर सकते हैं, और मतलब गांव वालों को सुविधा भी दे सकते हैं। जितने हम चाहते हैं कि जितनी अच्छी सुविधा हम गांव वालों को दे सकते हैं मैम। और ट्रेनिंग से इससे और सुधार आएगा गांव में, और गांव की उन्नति भी होगी मैम, और जिला की भी और हमारे देश की भी उन्नति होगी। नई चीजें ट्रेनिंग के दौरान नई चीजें सीखने को मिलती है और वो गांव तक हम पहुंचा सकते हैं मैम उनको। नमस्ते, मैं आशा ब्लॉक फैसिलिटर। हमारी योजना जो है आशा योजना, वो 2009 से स्टार्ट है। हमारी आशा NRHM में 2009 से काम कर रही है। तो तभी जब आशा लगी थी तभी इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब बहुत सी गवर्नमेंट में फैसिलिटी आ गई है और हमारी आशा को काम करने में थोड़ा इजी भी हो गया है। हमारी आशा जब घर घर जाती है तो हर घर की जानकारी हमारी आशा को
रहती है। हमारी आशा एक आरोग्य की दुआ में पहचानी जाती है। तो अभी जैसे हमारी आशा JSY बोले तो जननी शिशु सुरक्षा, NRC, सैम मैम के बच्चों, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे काम कर रही है। उससे अभी मैंने एक टॉपिक चुना है NRC का। हमारा क्वालिटी इंप्रूव का ट्रेनिंग हुआ था नवंबर महीने में। तो उस महीने में हमें क्वालिटी इंप्रूव का ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग लेके आने के बाद हमें और अच्छे से काम करने का तरीका पता चला। हमने जब ट्रेनिंग से आए मैडम, तो हमने बताया उनको कि जैसे अपनी आशा हमारी आशा हर घर में काम करते, तो उनको ये बताया कि अपन घर घर जाते हैं और घर घर जाके अपने को जो घर घर तो अपने को जाना ही है, लेकिन घर घर जाके उनके वार्ड में हर ऐसा घर नहीं है ना कि सबको समस्या हो। उनको हमने ये समझाया कि हर घर में समस्या नहीं होती, कुछ ही घर ऐसे होते हैं कि जहाँ समस्या होती है, तो वो समस्या कौन सी है और किस समस्या को अपन प्राधान्य देंगे, और वो चमू के द्वारा कि वह पहले उससे अगर सॉल्व नहीं हुई वो समस्या, तो फिर चमू को साथ लेके उनकी जो घट प्रवर्तक है मैं जैसे जैसे एनएम है, MPW है हमारे यहाँ, हम उनको लेके जाते हैं। फिर अगर MPW और एनएम से भी नहीं माने, तो फिर हमारे जो वैद्यकीय अधिकारी है, फिर हमारी जो चमू है पूरी, वो जाते हैं और उनके अच्छे से काउंसलिंग करके उनको समस्या का हल निकालते हैं। जैसे हम पहले जाते थे तो कैसे प्रॉब्लम उनके सुनते थे, लेकिन ठीक है प्रॉब्लम है तो अपन कुछ कर नहीं सकते ऐसा होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। जैसे हमारे NQ में सिखाया है कि पहले समस्या ढूंढो, क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम वो ढूंढो, और उसमें से आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो ढूंढो। फिर हमने समस्या क्या है ये जानने की कोशिश की सबसे पहले। इससे फिर जो हमें जो साध्य करना है और कैसे साध्य करना है, किस जगह साध्य करना है, वो हम टीम से चर्चा करके और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं अब NRC इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हमारा एक बच्चू था 3 साल का, शौर्य सचिन भगत। उसका जैसे बच्चे की वजन अनुसार बच्चे की हाइट बढ़ती है या फिर उसकी ग्रोथ होती है, वैसे होनी चाहिए थी, लेकिन इस बच्चे की हो नहीं रही थी। फिर इसका वजन ये बच्चा इसकी जन्म तारीख 8/3/2020 है। अब आज के तारीख में इसका वजन है 9 किलो 700 और ये बच्चा है 3 साल का और ये लाल श्रेणी में है, सैम के श्रेणी में आता है। तो हम उस बच्चे के हमारी आशा उस बच्चे के घर को गई थी। तो उस बच्चे की हाइट ग्रोथ अनुसार उसका वजन हमारी आशा को कम दिखाई पड़ा, तो हमारी आशा ने उसको काउंसलिंग किया। पहले तो हमारी आशा ने उनके घर में जाके समस्या पहचानी कि इनके घर में समस्या क्या है। तो समस्या से पता चला कि बच्चू तो है ही कम वजन का, लेकिन उसके जो माता पिता है वो मजदूरी काम करते हैं, दूसरों के खेत में काम के लिए जाते हैं। 14 दिन वहां पे रहे, तो हम अगर दवाखाने में 14 दिन रहे तो हमारे घर का कैसा चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, उनका ये प्रॉब्लम था। फिर ये 2 समस्या थी, लेकिन 2 समस्या में से एक समस्या हम हल कर सकते थे, जो कि है पापा के जो बच्चू है उसके पापा का बच्चों को हॉस्पिटल में लेके जाना। दूसरी समस्या थी हमारी कि बच्चों का वजन कैसे बढ़ाया जाए। माँ ने भी बहुत से घरगुती उपाय कर चुकी थी, लेकिन बच्चों का वजन कुछ बढ़ नहीं रहा था।
फिर हमारी आशा ने उनको बताया कि समस्या हमारी आशा ने समस्या ढूंढी। समस्या में ये था कि बालक का वजन कैसे बढ़ाया जाए। फिर हमारी आशा ने उनके बच्चों की माता और पिता से बात की, लेकिन वो माता पिता तैयार नहीं थे। उनका कहना ये था कि अगर हमने बच्चों को हमारी बालक को रेफर किया सिविल में तो हमारी मजूरी नहीं मिलेगी, हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, क्योंकि वो मजूरी वाले लोग थे। तो फिर हमारी आशा ने उनके घर एक बार गई, दो बार गई, फिर भी लेकिन वो लोग कुछ माने नहीं। फिर हमारे पास आई हमारी आशा कि मैडम ऐसी ऐसा समस्या है, मैंने देखी जाके, लेकिन ये लोग कुछ सुन नहीं रहे। तो फिर हम गए फिर मैं और मेरी आशा, हम दोनों विजिट के लिए उनके घर गए। उनको अच्छे से समझाया कि आपके बालक को एनआरसी में एडमिट करना पड़ता है। अगर आपके बालक को एनआरसी में एडमिट किया तो आपके बालक का वजन 80 से बढ़ जाएगा। तो उन्होंने तभी तो हाँ में सिर हिलाया था। हाँ में सिर, हमें लगा कि अब वो जाएंगे, लेकिन हमने एक दिन बाद फॉलो लिया तो वो कुछ लोग गए नहीं, ऐसा हमको नजर में आया। फिर हमने उनके घर दोबारा विजिट की और उनको अच्छे से समझाया, और समझाने के बाद खुद से उनको लेके उनके साथ मैं और मेरी आशा, हम दोनों आशा को पेशेंट को लेके सिविल को बुलाई और मैं सिविल हॉस्पिटल में गई और सिविल हॉस्पिटल में जाके उस बालक को एडमिट कर दिया और उनके पापा और मम्मी को दोनों को भी समझा दिया कि सिविल हॉस्पिटल में आपके बच्चे की अच्छे से केयर लेंगे और सिस्टर केयर लेते हैं अच्छे से, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बच्चे के वो वहां सब मिलता। और जो बच्चे के पास रहने वाली उसकी मम्मी है उसको भी जो दुबित मजूरी बोलते हैं वो भी वहां मिलती है। तब वो लोग राजी हो गए। फिर वो बच्चों 14 दिन एडमिट रहा। तो उस बच्चों का वजन अब 14 दिन में 200 ग्राम बढ़ा है। जब एडमिट करने से पहले का वजन था 9 किलो 700, और अभी का वजन है एडमिट के बाद छुट्टी होके घर के बाद आने का वजन है 9 किलो 900। तो अभी 200 से उस बच्चों का वजन बढ़ गया है। तो हमारी समस्या जो थी वो हमने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। मेरा नाम चारुशीला प्रफुल्ल गोड़े, आशा घटक प्रवर्तक, खरांगना गोड़े पीएससी, तालुका वर्धा, जिला वर्धा। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे तरोडा गांव में ऐसा एक उदाहरण हुआ। उसमें एक एनसी माता थी। उनका पति के साथ रोज झगड़ा हुआ करता था। उसकी डिलीवरी हुई, बाद में उन्होंने सोचा कि उस बच्ची को उसके पापा के पास रखकर वो मायके चली गई। फिर हमारी आशा ने उसको ग्रो बेड दी। तो उन्होंने हमें देने के लिए पहुंची तो उसने बताया कि मैंने उस बच्ची को उनके पास दे दिया। तो हमारी आशा ने बोला कि अब क्या किया जाए। तो उस आशा ने मुझे फोन किया। तब मैंने लाभार्थी को फोन पे बात की, लेकिन वो समझ के बाहर थी। तो मैंने समस्या का निवारण करने के लिए टीम वर्क का उपयोग किया, जैसे आपने ट्रेनिंग में हमें बताया था। फिर हम मेडिकल ऑफिसर, हमारी लक्ष्मी एनएम, आशा आंगनवाड़ी सेविका और वहां की सरपंच को लेकर हम उनके घर पहुंचे। तो फिर उसको हमने उस बच्ची को दूध क्यों नहीं पिलाती ऐसे बोला। तो उसका दूध नहीं पिलाएगी तो उसका तुम पर और तुम्हारी बच्ची पर भी बुरा असर पड़ेगा, ऐसे हमने बोला। उस बच्ची का क्या दोष? आपके झगड़े में वो बच्ची भूखी रहेगी, तुम पर उसका वाइट परिणाम पड़ेगा। तुम दूध नहीं पिलाओगी तो स्तन को चीरा देना पड़ेगा, स्तन पर गाढ़ भी पकड़ेगी, स्तन का कैंसर भी हो सकता है। ये ऐसी बात बताई, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमने उनके पति की जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली कि वो में
कोई परेशानी करेगा तो हम उसको पुलिस कंप्लेंट करेंगे, तो तुम सिर्फ बच्ची का ख्याल रखो। तो वो मान गई। तो ऐसे वो खाना भी नहीं खाती थी। हमने रोज दिन में 3-4 बार आशा को उनके घर जाकर विजिट करने के लिए बोला। इस तरह हम पीडीएसए का उपयोग करके उस प्रॉब्लम को सुलझा लिया। अब वो लड़की भी अच्छी है और वो माता भी अच्छी है। इस ट्रेनिंग की वजह से हमने बहुत सारी बातें समझाने से हमको इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। हमें लगा भी नहीं था कि इस परिस्थिति में हम उन लाभार्थियों का सामना कर सकेंगे। आपने हमें जो टीम वर्क से कैसे काम करना चाहिए ये बताया। इस तरह हमने जैसे वो टीम वर्क से वो उस एएनसी माता की मदद की। थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरा नाम गीता रानी है। मैं उत्तर पश्चिम जिला में दिल्ली में एएनएम के तौर पे केशवपुरम डिस्पेंसरी में कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पर मातृ एवं शिशु सुरक्षा की सेवाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी पोकी ट्रेंड नहीं है व्यक्ति स्टाफ में, तो मैंने यह ट्रेनिंग 1.5 साल पहले ऑनलाइन अटेंड की थी, जिससे कि मेरे को काफी नई चीजों का ज्ञान हुआ। फिर मैंने आकर अपनी डिस्पेंसरी में भी बताया कि किस प्रकार से पोकी हमारे कार्य में हेल्प कर सकता है। तो स्टाफ को पोकी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनको सारा बताया कि किस प्रकार हम कम स्टाफ की और सामान की उपलब्धता के बावजूद भी हम अपना कार्य अच्छी तरह से करके और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो मैंने अपनी एक टीम का गठन किया, जिसमें कि हमारे डॉक्टर साहब थे और हमारे अन्य स्टाफ के मेंबर्स थे, और उनको मैंने बताया कि हम किस प्रकार सबसे पहले तो हम अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको लिखते हैं, और फिर जो समस्या सबसे अधिक हमारे को लगता है कि जरूरी है उस पे हम चर्चा की हमने। तो हमने देखा कि हमारे जो सबसे प्रमुख हमारी एक समस्या थी कि हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर कुछ कई बार जोखिम वाली महिलाएं भी होती हैं जो कि हमसे कई बार छूट जाती हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। तो हमने उन्हें पहचानने के दिशा में कार्य करना शुरू किया। तो इस प्रकार पोकी ने हमारी बहुत मदद की कि हमने कैसे उसे ढूंढे कि हम अपनी माँ को जल्दी से जल्दी पहचान कर उसको सेवाएं दे पाए। तो इसके लिए हमने एक रजिस्टर बनाया, जिसमें कि हम हर गर्भवती जो कि जोखिम वाली महिला है उसका एक हमने नंबर देना शुरू किया और उसमें उसका लिखना शुरू कर दिया। तो हर माँ को जो कि हमारी हाई रिस्क मदर है उसको एक नंबर दिया, और उसका बाहर हमने एक इंडेक्स बनाया। इंडेक्स के अंदर खोलते ही हमें पता लग जाता था कि हमारी इतनी हाई रिस्क मदर हैं जो कि जोखिम वाली हैं, और फिर उस रजिस्टर के अंदर हम उसकी पूरी विस्तृत जानकारी लिखने लगे कि वो महिला हमारे पास फॉलोअप में कब आई, और अगर नहीं आई तो हमने फोन नंबर भी साथ में ही लिखा होता था। तो हम फोन नंबर से उसे तुरंत कॉल करके और पूछते थे कि आप यहाँ नहीं आए, अगर अस्पताल गए हैं, तो हम उनसे उनकी सारी विस्तृत जानकारी लेने लग गए। तो इस प्रकार पोकी ने हमारे जो काम करने का तरीका था वो बहुत बदल दिया, और अब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहित मानने लगी। अब लगता नहीं कि मैं कभी थकती भी होंगी, और मैंने अपनी जितनी भी मदर्स हैं उन सब का रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है, और जैसे ही समय मिलता है तो हम एक व्हाट्सएप पे उनको कॉल भी कर लेते हैं, और वो उन महिलाओं को हम बुलाते हैं कि आप लोग अपना चेकअप कराने के लिए आइए। और कोशिश होती है कि सभी गर्भवती महिलाओं का जो कि समय पे उनका डिलीवरी हो और उनको जो भी सेवाएं देनी है वो हम दे पाए। इसके अलावा इस पोकी ने हमें ये भी सिखा दिया कि हम कम संसाधनों के बावजूद भी हम अच्छे प्रयास करके कार्य कर सकते हैं। और इवन मेरे खुद के काम करने में इतना परिवर्तन आ गया कि मैं अपने आप को कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करती। और मेरा जो एक बात करने का तरीका है, मैं भी और मेरे जो स्टाफ के अन्य व्यक्ति हैं उनके बात करने का भी तरीका
मरीजों के प्रति इतना नरम और अच्छा हो गया है कि हमें जो भी आते हैं मरीज और उनके परिवार के व्यक्ति, वो हमें कॉम्प्लीमेंट्स देकर जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि हमारे जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हों कि वो भी इस NQOCN में जरूर शामिल हों और अपने कार्य करने का जो तरीका है उसको और बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारा जो एक लक्ष्य है कि स्वास्थ्य की प्राप्ति सबको हो, तो उसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग आप सब लोग भी लीजिए, और मैंने अपने और फ्रेंड्स को भी बताया है कि ये इस प्रकार से इस ट्रेनिंग में भाग लेके और अपने जीवन में हम उसे जब शामिल करेंगे तो हम अच्छे रिजल्ट पाएंगे। धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से मैं अपने समुदाय में उन लोगों के दिलों में जगह बना पाई हूँ। थैंक्स अ लॉट। I would like to thank all the panelists for sharing your experiences with us. It was such a wonderful experience sharing by all the panelists. So now I request Professor Shrija Vijayan to take the session forward and move ahead with the panel discussion. थैंक यू डॉक्टर कोमल। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। चारुशीला जी, उमा जी, अश्विनी जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अश्विनी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवा जो है उसके अंदर आपकी भूमिका बहुत अहम है, और हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से आप अपना ज्यादा से ज्यादा अनुभव जो है वो शेयर करें, ताकि और लोग भी उससे मोटिवेट हो। तो सबसे पहले मैं अश्विनी जी से ये जानना चाहती हूँ कि जो फोकी कार्यशाला आपने अटेंड की थी, उसमें आपने क्या नया सीखा जो आप चाहते हैं कि आप बाकी के आशा कार्यकर्ताओं को भी सिखाना है? अश्विनी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो मैम। जी, सुनाई दे रहा जी मैम, हमारी आशा तो काम करती थी, हम भी काम करते थे पहले, ट्रेनिंग के पहले। लेकिन कैसा है, हम जब समस्या रहती थी कौन सी भी, तो हम कैसा एक समस्या ऐसी नहीं, हम 4-5 समस्या, अगर एखादे अपन घर में जाओ तो घर में कैसे एक ही समस्या नहीं रहती, 2-4 समस्या एक साथ रहते हैं। एक समस्या को लेकर दूसरी समस्या, दूसरे को तीसरी। लेकिन कैसा है, फोकस किस समस्या पे देना चाहिए था, ये हमें इतना समझ में नहीं आया, पहले आता नहीं था। लेकिन जब से ट्रेनिंग हुआ है कि अपने हमने ट्रेनिंग में सीखा है कि सबसे पहले समस्या पहचानो, और समस्या में जो समस्या को प्राधान्य देना है, जो क्रिटिकल समस्या है उसको पहले प्राधान्य दो। ये तो हमने पहले सीखा कि जो हमको हमारा ध्येय है वो कैसे प्राप्त करना है, इस ट्रेनिंग से हमने सीखा है। अब मैडम, मैं कल का एक उदाहरण देना चाहूंगी, है। तो बिल्कुल। बोलूं क्या? हाँ जी, कल बिल्कुल। कल मैं हमारे वर्धा में एक पिपरी है, उपकेंद्र पिपरी, वहां पे हमारा लसीकरण था, तो मैं गई थी वहां पे। तो वहां पे एक लेडी आई, तो उसका बहुत जोर से ऐसा पेट दुख रहा था, तो वो लेडी एएनसी निकली। तो हमें कैसा, अब उनके उनके घर में बहुत झगड़ा हुआ था, दोनों पति और पत्नी का। उसके साथ उसका पति दवाखाने में जाने के लिए भी तैयार नहीं था। उसको लेकर वो आ गई, वो उसने फोन किया हमारी आशा को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तो वैसे ही हमारी आशा उसको उपकेंद्र में लाई, और उपकेंद्र में लाए बरोबर उसने एएनएम को फोन किया कि ये इसका प्रॉब्लम है, उसका पेट दुख रहा। तो अपन को समझ में नहीं आया क्योंकि वो एएनसी थी, और पेट कैसा है क्या है ये अपन आशा को कैसे इतना ज्ञान नहीं है अंदर का। तो उन्होंने एएनएम को फोन किया, और एएनएम को फोन करने के बाद वैसे ही एएनएम आई। फिर एएनएम ने एम्बुलेंस उसको चेक किया, और हमारे जो एमओ है आंजी में, उनको कॉल किया। उन्होंने त्वरित से एम्बुलेंस बुलाई। तो एम्बुलेंस में बैठने के लिए उनके पति भी राजी नहीं थे। फिर आशा बोल रही कि ये लोग आ नहीं रहे, अपन कैसे करें, मैं कैसे जाऊँ अकेली। तो हमने सिर्फ ये ध्यान में रखा कि वो अपनी एएनसी है, अगर एएनसी नहीं रहती तो हम उनको बोल सकते थे कि आप ऑटो करके जाओ, कि और कुछ साधन से हम उन्हें भेज सकते थे।
लेकिन वो एएनसी थी, इस कारण हमने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में उसका पति भी जाने के लिए तैयार नहीं, तो हमने हमारी रिक्स पर हमारी आशा को उसके साथ भेजा, उसकी समस्या पहचान कर, और उसके साथ भेजकर हमने जिला रुग्णालय में उसे भेजा, और उसकी जो तपासनी है आशा के जरिए, डॉक्टर के जरिए आशा को साथ रखकर सभी जांच कर लिए। फिर वो आशा सब जांच करके वो एएनसी को वापस अपने घर के लिए लाई। ऐसा नहीं है कि वो एएनसी को उसने एडमिट कर दिया और वहां छोड़ दिया, बिल्कुल हमारी आशा ने वैसा नहीं किया। हमारी आशा उतनी देर उसके साथ रही और जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक रही, और उसको रिटर्न घर को वापस भी लाई। तो इस ट्रेनिंग के जरिए हमने पहले समस्या पहचानी, समस्या क्रम को प्राधान्य दिया, और प्राधान्य के बाद हमें क्या करना चाहिए टीम वर्क पे वो भी। हाँ, टीम वर्क वो किया और कार्यप्रणाली में बदल किया। फिर सुधार कैसा होना चाहिए, तो हमने भेजकर उन्हें, वो एएनसी को कुछ होना भी नहीं चाहिए, वो प्राइवेट बस से भी जाना नहीं चाहिए, हमारी एम्बुलेंस में ही भेजा और उसका अच्छे से इलाज हो गया वहां पे। और जो थैंक हमें यू सो मच। साध्य करना था, टीम के जरिए जो हमें साध्य करना था वो हमने साध्य कर लिया। अब बिल्कुल, वो बहुत अच्छे एएनसी हैं। अच्छी है, 5 महीने की एएनसी थी वो, तो अब हम्म। उसकी तबीयत अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक टीम वर्क का फॉलोअप भी आपने किया, आपने प्रायोरिटाइज भी किया, तो बहुत अच्छे से आपने काम किया। तो आपने जो किया है वो आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल उमा जी से है, जिन्होंने अपना क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के 2 प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर किए थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट को और किन एरियाज़ में अप्लाई किया, या कुछ और लोगों को इससे मोटिवेट या प्रेरित किया है क्या? या आपके इन प्रोजेक्ट से और भी लोग मोटिवेट हुए हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, जैसे कि आपके रिजल्ट आए हैं, और उनको आपने अपने स्वास्थ्य कार्यों में कैसे लागू किया? हाँ मैम, हेलो मैम, मैं उमा हाँ जी। देवी जंघेला, जी। पोस्टेड इन स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला। हम लोगों ने, जैसे कि वीडियो में सभी ने देखा है, कि हम लोगों ने हमारी फैसिलिटी में 2 प्रोजेक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंडर सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। पहला तो हमारा अर्ली इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का रेट इंक्रीज हुआ, और सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा फैसिलिटी फॉलोअप इंक्रीज हुआ है। तो ये सब क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से ही हुआ है हमारे यहाँ। फिर जो हमारे लेबर रूम भी है, जैसे हमारा तो सेंसिटिव यूनिट है, अदर जो डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है, वहाँ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन लोग भी हम लोगों से पूछते हैं इसके बारे में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में। और जो हमारे यहाँ का रेट इंक्रीज हुआ है EIBF का, फैसिलिटी फॉलोअप का, तो हमारे जो और कलीग हैं मेरे बैच के, तो लोगों का भी कॉल आता है कि तुम लोगों ने कैसे इसको इम्प्रूव किया है, कि इतना ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो गया फॉलोअप में, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में। तो उन लोग भी इसके बारे में पूछते हैं, तो उनको भी हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बताते हैं, पर उन लोग भी यही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उन्हें हमने बताया है कि इसका ऑनलाइन कोर्स भी होता है, तो जब भी होगा तो उसकी लिंक शेयर करेंगे। बिल्कुल, यानी आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, आपके आस-पास की जो फैसिलिटीज़ है, वो भी मोटिवेट हुई कि वो QI को अपटेक करें। थैंक यू सो हाँ, मच। कोई गीता जी से मैं पूछना चाहूँगी कि पोकी प्रशिक्षण में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? जब आपने ट्रेनिंग ली, आपने हाई रिस्क मदर्स को भी आइडेंटिफ़ाई किया, तो ये जो पोकी ट्रेनिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया? गीता जी, शायद ड्रॉप हो गए हैं, कोई बात नहीं। नहीं मैम, गीता मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। अच्छा है। हेलो। जी। हाँ जी मैम, हाँ सुन जी पा मैम, रहे हैं? हाँ जी मैम, सुनाई दे रहा है। पॉकी ट्रेनिंग ने तो मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखाई, जो हमें पहले ऐसे ही लगता था कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो हमें समझ में आया कि किसी एक समस्या का हल करना है, और वो भी टीम वर्क के साथ। तो पूरी टीम ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो हमारी टीम का जो आत्मविश्वास था वो भी बढ़ा। और इसमें हमने फिश बोन एनालिसिस और PDSA को भी अपनाया। जैसे कि हमारी मदर्स हम तक नहीं पहुंच पाती थी, तो मैंने उन तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे उनके फैमिली मेंबर्स या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके, हमने उनको इन्वॉल्व करना शुरू किया।
तो मैंने वीडियो कॉल करनी शुरू की जिसमें 5 या 6 लोग ऐड हो पाते थे एक बारी में। तो उनकी मदर इन लॉ भी साथ में होती थी, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट फील करते थे कि कोविड एरा में भी हम लोग ऐसे वीडियो कॉल इनकी मैडम से कर रहे हैं। तो वो मेरी सब बातों का इतना अच्छा जवाब देते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो फैमिली में हस्बैंड के पास छुट्टी नहीं है, तो हमारे यहाँ पर सब स्टील की फैक्ट्रीज है जहाँ पॉलिश होती है इंडस्ट्रियल एरिया, तो उनका वेडनेसडे ऑफ होता है और हमारे यहाँ वेडनेसडे इम्यूनाइजेशन डे होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप वेडनेसडे को आओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, मैं आपको अलग से इनके बारे में सब समझाऊंगी। तो इस प्रकार उनकी छुट्टी भी नहीं होती और मैं उनका वो वाला काम कर देती हूँ कि थोड़ा मेरे 15-20 मिनट से उस फैमिली को कितना फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने पीडीएस से में अपने थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया कि कैसे हम उन तक पहुंच कर और मदद कर पाए। और इसके अलावा ये हमारी टीम है जो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैम। अच्छा, आपकी टीम में कौन कौन मेंबर्स है आपके साथ में है, जो आपकी डिस्पेंसरी है उसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं ओकी के अंदर हाँ जी मैम, जो हमारे आपने? इंचार्ज है वो बहुत ही सपोर्टिव है, हमारे डॉक्टर हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। वो भी मुझे बहुत रास्ता दिखाते हैं कि हमें ऐसे कर लेना चाहिए। वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे पेशेंट का सब काम करते हैं। हमारी लैब टेक्नीशियन है वो भी जल्दी से उनके सब टेस्ट और रिपोर्टिंग और जो भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं सब देनी है। और हम भी उनका जल्दी से जो भी उनको बर्थ प्रिपेयर्डनेस है और सब कुछ एक अलग रूम में बिठा के डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे हम थोड़ा सा उनको डाइट के बारे में बताते हैं, तो हम थाली के अंदर थोड़ी फ्रूट वेजिटेबल्स और छोटे छोटे पाउचेस हमने दालों और उसके रखे हुए हैं परमानेंट। तो वो बॉक्स खोलते हैं, उसको प्लेट में सजाते हैं और उनको बताते हैं कि यही सब कुछ खाना चाहिए। तो उनको तो बहुत इस अच्छा लगता है कि तो इससे पेशेंट इतना सेटिस्फेक्शन और आउटकम पे भी बहुत आपके इम्पैक्ट पड़ा होगा। कि उनको इतना सरप्राइज होता है कि ये इतने छोटे छोटे जो सस्ती सस्ती चीजें, इससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और ऐसे हम अगर आयरन की गोली नींबू पानी के साथ खाएंगे तो वो शरीर में ज्यादा अवशोषित होगी। ये सब चीजों से उनको काफी क्लैरिटी होने लगती है। और वो मुझे बहुत फोन करके हर टाइम छोटी छोटी बात के लिए मुझे कॉल करती हैं कि मैम आप तंग तो नहीं हो जाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोग कमर से मुझे फोन कर दीजिए। तो मैं मदर्स के नाम सेव करके रखती हूँ कि वो कौन से एड्रेस के, मैं उनको रिकॉल इजीली कर। तो दोनों लोगों के लिए मोटिवेटिंग है, जो आपने किया उसका आउटकम भी बहुत अच्छे से आ रहा है और हाँ आप भी बहुत सेटिस्फाइड है और वो भी बहुत सेटिस्फाइड है। थैंक यू सो मच। मैं चारुशीला जी हैं। चारुशीला जी, अपने आपको अनम्यूट करेंगे आप? हेलो। हाँ चारुशीला जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं हम आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं कि हम और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य जो कर्मी है वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे जैसे आप लोग इससे मोटिवेट हुए और आपने क्यूआई प्रोजेक्ट लिया, आप लोगों ने छोटे छोटे चेंज टेस्ट किए, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? आप लोगों ने जो हमें ट्रेनिंग दिया मैम, वैसे ही हमारे कार्य क्षेत्र में जाके आशा को बताते, लेकिन हमारी जैसे हमारे आशा का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। हमारी आशा का काम तो अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग में जो आपने हमें सिखाया उसी तरह आप भी हमारी आशा का ट्रेनिंग गांव लेवल पे या पीएससी स्तर पर लेना चाहिए। उसके कारण क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा और ज्यादा सर्विसेज भी बढ़ेंगे। और आपने जो हमें फार्मूला बताया पीडीएससी का, जैसे यूज कैसा कर रहे हैं, वैसे आप ट्रेनिंग में खुद आप सिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओ, धन्यवाद। अश्विनी जी, क्या आप हमसे साझा करेंगे कि इन प्रशिक्षण सत्रों को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं? अश्विनी जी भी बता सकते हैं, चारुशीला जी भी बता सकते हैं कि इन सत्रों को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी है वहां तक हम पहुंच सके। मैम जैसे अब कैसे है, आशा जो है वो हर घर घर जाके काम करती है, लेकिन वो कैसे उसका जो काम है वो काम करने में नया तरीका उसको अगर मालूम गिरा कि अगर अपन ये काम तो कल कल चलता ही जा रहा है अपना काम, 10-12 साल हो गए आशा अपनी काम कर रही है, लेकिन किस पेशेंट के लिए, किस व्यक्ति के लिए कौन सी समस्या है, क्या है, इसके लिए उनका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही एक ऐसी व्यक्ति है जो हर घर जाती है और उसको जी ही हर घर की समस्या भी पता चलती है। जी। किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या है, वही सबको बता सकती है। अगर जैसा हमारा ट्रेनिंग हुआ, उनका अगर ट्रेनिंग हुआ, वैसे ही
तो हमने तो उनको बताया है, लेकिन कैसा है आमने सामने ट्रेनिंग होना और बताना, ट्रेनिंग से और बेहतर हो सकती है अपनी आशा। आप चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को भी और से इस तरह से जो आपको ट्रेनिंग मिली उसी तरह से उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो प्रोजेक्ट है और ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। यस मैम, क्योंकि ट्रेनिंग का असर अलग ही होता है, ट्रेनिंग एक अलग ही माना जाता है। हाँ, पर्सनली जब हम बात करते हैं हमें ज्यादा समझ में आती है चीजें, उसकी हम्म, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है उन चीजों की। समझ पड़ती है, बराबर मैम। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पूरी आशा टीम से कि अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे आप अभी प्रोजेक्ट करने लगे हैं, तो आप कहीं इसको लिख के भी रखते होंगे कि हमने इतनी माताओं को हेल्प किया, हमने ये नया कुछ किया। तो आपको जब ट्रेनिंग लिया उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको मेंटरिंग की भी जरूरत है कि आप बीच में कभी कहीं अटक जाए तो किसी से बात करें, तो कितना फ्रीक्वेंटली आप किसी से बात करना चाहेंगे, जो कि जैसे एनक्यूएसइन की टीम से आपने ट्रेनिंग लिया था पूरा, तो आप किस फ्रीक्वेंसी में चाहते हैं कि वो आपसे बीच बीच में पूछते रहें और आपसे बात करते रहें और आपको मोटिवेट करते रहें? हम्म। अब कैसा है मैडम, ट्रेनिंग तो होना ही 2 महीने 4 महीने गए कि कैसा है दिमाग रिफ्रेश होना चाहिए, क्योंकि कैसा है मनुष्य है ना, भूल जाता है और इसलिए पूछेंगे वो भी और मोटिवेशन मिलेगा ना बीच बीच में मोटिवेशन कोई। मिलेगा। और कैसे ट्रेनिंग का एखादा घंटा तो भी कुछ ना कुछ इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए। हाँ, तो ट्रेनिंग के बाद आप चाहते हैं कि महीने या 2 महीने में एक बार मेंटरिंग का सेशन हो जाए, तो उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिल सकती है ना इन सब चीजों को करने के लिए। हेल्प भी गीता हो मैम, सकती है और कैसे बार बार अगर अपन बताएंगे तो वो कैसे फिट हो जाता है अच्छे से। एक बार से नहीं होता, वो बार बार से होता है। बिल्कुल साल में 2-3 बार होना ही चाहिए मैम। साल में 2-3 बार होना चाहिए, बिल्कुल। गीता गीता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए गीता जी। कि मैम हमें कुछ कुछ रिफ्रेशर ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ताकि हम कुछ नए आइडियाज और सीख पाए और अपने उनसे सजेशंस ले पाए मेंटर से। जी। अच्छा, उमा जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये ट्रेनिंग ली, तो उसके ये प्रशिक्षण लेने के बाद कभी आपको लगा कि आपके काम करने के तरीकों में बदलाव आ गया है, काफी कुछ आपके देखने का जो तरीका है चीजों को वो बदल गया है जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो? हाँ मैम, ये आपके ट्रेनिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग के बाद हम लोग का जो वर्कलोड भी है वो भी बहुत कम हुआ है। जैसे पहले हम लोग क्या है सिस्टमेटिक वे में वर्क नहीं होता था, अब हमारा वर्क एक सिस्टमेटिक वे में जाता है। जैसे कि हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो था हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट जो बताया था उसमें हमने चेंज किया था कि आफ्टर डिलीवरी बेबी को इमीडिएट ड्राइंग करना है, फिर स्किन टू स्किन केयर में रखना है, फिर हम विटामिन के एडमिनिस्टर करते थे, वेट ले लेते थे। फिर अब हमने उसको अपने जो डे को सिस्टमेटिक किया कि डिलीवरी के बाद हमको बेबी को इमीडिएट ड्राइंग करना है, डिले कॉट कैंपिंग करना है, स्किन टू स्किन केयर करने रखना है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उसके बाद जो है जो विटामिन के वेट वगैरह लेना है। तो ये हमारा जो वर्क है सिस्टमेटिक हो गया। हम तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में हम ब्रेस्ट फीडिंग की रेट को इंक्रीज करना चाहते थे, पर उसके साथ साथ हमारा जो था इमीडिएट ड्राइंग भी बढ़ा। पहले इमीडिएट ड्राइंग नहीं होता था, एब्डोमिनल डिलीवरी हमारी बढ़ी, फिर हमारा स्किन टू स्किन केयर भी नहीं हो पाता था आफ्टर डिलीवरी, तो स्किन टू स्किन केयर की रेट भी बढ़ गई हमारी, बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं गया। और डिले कॉर्ड कैंपिंग, ये सारी जो 4-5 चीजें भी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ये 4-5 चीजें भी हमारी इम्प्रूव हो गई। और हमारे यहाँ स्टाफ का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। अब हम क्या करते हैं मिनिमल रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं तो भी मतलब हमारा जो वर्क का इम्पैक्ट है वो इफेक्टिव है और एफिशिएंस है। और सारे स्टाफ लोगों का भी थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ, और एक जो थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ, अब जो हॉस्पिटल में सबका बिहेवियर भी चेंज हुआ कि हाँ, जो बच्चे जो सिक न्यूबॉर्न रहते हैं वो अंदर रहते हैं, उनके पेरेंट्स लोग को बहुत ज्यादा एंजियस रहता है ना कि हमारा बच्चा अंदर कैसा होगा,
कैसे सिस्टर लोग अच्छे से उसको फीड करा रही होंगी कि नहीं, ठंडा तो नहीं होगा बच्चा, लैट्रिन बाथरूम में बच्चा पूरा गीला तो नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोगों का क्या है, उनके साथ जो IPR रहा मदर और फादर के साथ, ये थोड़ा स्ट्रांग हो गया। उन्हें हम लोगों पर बिलीव रहता है कि ये सिस्टर्स लोग हैं, ये लोग पूरा मतलब बच्चों को अच्छे से रखेंगी अपने बच्चों की तरह। वो बोलते भी हैं, आते हैं पेरेंट्स लोग तो बोलते हैं कि आप लोग ही माँ बाप हो हमारे बच्चों के, कि आप लोग को ही भरोसे हमारा बच्चा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में का सबसे ज्यादा फायदा है टीम वर्क का, क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप में टीम वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अदर ड्यूटी तो नहीं है कि 10 से 5 ऑफिशियल ड्यूटी की 10 से 5 ड्यूटी कर लिए और उसके बाद चले गए। एक टीम लीडर हो गया 10 से 5 के लिए, तो उसने अपने जो टीम मेंबर है उनको उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है। पर ये 24 आवर्स ड्यूटी है, इसमें टीम का सपोर्ट होना, टीम की यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसमें हर 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, तो इससे टीम वर्क बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें बहुत हॉस्पिटल सेटअप में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, टीम वर्क से हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, वीक पॉइंट का पता कर पाते हैं, और सारे जो स्टाफ है उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आती है। और जैसे भी कोई भी चेंज आइडियाज रहते हैं उनको सब लोग सक्सेसफुली अडॉप्ट करते हैं। मतलब या भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के पहले हम लोग जो थे, मतलब जो 2018 में हमने ट्रेनिंग की, तो उसके पहले ही हम लोगों का जो नजरिया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम लोगों का अलग था, अलग वे में था। मैं इसको एक जो अपना एक गेम होता है ना, स्नैक्स एंड लैडर गेम, सांप सीढ़ी की गेम के वे में समझाना चाहूंगी। जैसे सांप सीढ़ी का गेम तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग खेले हैं बचपन में। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन सांप सीढ़ी के गेम में हम लोग हम बॉटम में रहते हैं लैडर के, तो हम जैसे हमारा जो काउंटर है बॉटम में रहता है लैडर के, तो हम सीधे अप में चले जाते हैं। तो हम उसके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के पहले हम कोई भी एक चेंज आइडिया लेते थे, उसको सीधे हम मान लेते थे कि हाँ ये वर्क ही करेगा, बस यही वर्क करेगा, इसके ज्यादा हम सोचते नहीं थे, ज्यादा एनालिसिस नहीं करते थे। और जैसे ही ऊपर हमको रिजल्ट तो मिल गए, पर जैसे ही क्या होता था कि वीक पॉइंट हम लोग क्या क्लियर नहीं करते थे उनको, तो सीधे हम जैसे कि बोलते ना जैसे हेड ऑफ स्नैक जाएंगे तो हम सीधे उसके डाउन में चले जाएंगे, तो सीधे एक धड़ाम से गिर गए। तो उसके बाद ये हुआ कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग के बाद ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारी सॉल्व हो गई। तो ये मिनिमम रिसोर्स में भी हम लोग क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, थैंक्स टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कि हमने 2 प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली करे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग के वार्ड में SNSU का एक अदर यूनिट खुली है, न्यूनेटल हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो उसमें मतलब कि 2.5 से नीचे के बेबीज को रखना है। वो इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा उनको KNC देना है, मदर को अच्छे से समझाना है, क्योंकि वो सब हाई रिस्क बेबी रहते हैं, प्रीमेच्योर बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, उनको लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत है। तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें हम KMC प्रोवाइड करें। अभी हमारी कम से कम एक 24 आवर में हम लोग की 5 से 6 घंटे की KMC होती है। हम उसको चाह रहे हैं कि 10 to 12 आवर तक हो, तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस पर वर्क करेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। टीम वर्क के बारे में बताया कि आपके सिस्टम में कैसा चेंज आया, आपकी फैसिलिटी में क्या सुधार हुए, आउटकम में क्या बदलाव हुए। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप लोग कर चुके, स्ट्रांगली कर चुके हैं। तो आप बाकी लोगों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं जो आपके आस-पास की फैसिलिटीज़ हैं। गीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपने ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग ली, उससे क्या आपके निजी जीवन में कोई असर पड़ा? उससे कुछ बदलाव आया, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ जी मैम, इस ने तो मेरे जीवन की जो वो स्टेटमेंट है ना, जो एम स्टेटमेंट है वही बदल दी है। अब मैं किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझती, मेरे को वो एक मौका लगता है कि मुझे एक मौका मिला आगे बढ़ने का। और इसके अलावा मुझे अपना काम करने से, जो मैं पहले दूसरों से एक्सपेक्ट करती थी कि लोग मेरे से ऐसा बिहेव करें या मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दें, अब मैं वैसा देने की कोशिश करती हूँ। तो इससे मेरे समुदाय के लोगों में मेरे प्रति बहुत विश्वास भी बढ़ा है, तो जिससे मुझे लगता है कि मैं आगे और भी अच्छा काम कर सकती हूँ। अभी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, तो अभी रिसेंटली मैं एक किसी शॉप पे गई स्टील का कुछ बर्तन लेने, तो वहाँ पे उनका एम्प्लॉय था, उसने मुझे पहचान लिया कि गीता मैडम आप कैसे हो, मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है ना, अभी तो मेरा कार्ड वो मिसप्लेस हो गया, आप नया बना देना। तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसे रिकॉग्नाइज किया, फिर मुझे उसने जैसे ही अपना नाम बताया तो मुझे उसकी वाइफ का नाम याद आया कि तुम श्रेया पांडे के हस्बैंड हो। तो उसको भी इतना अच्छा लगा कि मैम मुझे जानती हैं। तो
ये पॉक्सी की वजह से सब संभव हो पाया है कि हम अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से आपके जो फैसिलिटी है वहां पर भी काफी सुधार आया और आपके अपने निजी जीवन पे भी इसमें बहुत असर हुआ है। हाँ जी मैम, हाँ जी। हमें लगता है ये अच्छा मैम एक कि हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी हुई है। अच्छा, उमा जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स को रन किया, चलाया, तो कोई चैलेंजेस आपने फेस किए थे और अगर किए थे तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? उमा जी? मैम जो हम्म। हम लोग का ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोजेक्ट था, उसका जो स्टार्टिंग क्या क्या था, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोगों ने पहले फ्लो चार्ट को चेंज कर दिया और वही वर्कलोड आ रहा था हम लोगों का। फिर हमने उनको काउंसिल करना स्टार्ट किया मदर्स को। पहले हम लोग चाहे कोई पॉइंट फिक्स नहीं थे, ऐसी काउंसलिंग कर देते थे कि फीड कराना है करके, क्योंकि और पर ये है प्राइमरी मदर में थोड़ा सा हम लोग का चैलेंजेस था। प्राइमरी मदर है, फिर इपिज़ोटोमी रिपेयर होता है आफ्टर डिलीवरी, फिर फैमिली पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो इसको हमने फिर ओवरकम किया कि हमने उनको एंटीनेटल वार्ड में काउंसलिंग करना चालू किया। फिर हमने विजुअली ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मदर लोग हैं और उनके फैमिली वालों को भी थोड़ा सा ये रहता है कि कैसे फीड कराना है, हाउ टू फीड इन लेबर रूम। तो हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, फ्लिपकार्ट के थ्रू पिक्चर्स दिखाए फिर उनको। तो इस तरीके से हमारा ये चैलेंज था प्राइमरी मदर में और कैसे फीड कराना लेबर रूम में। फिर हम लोग के फॉलोअप में तो ज्यादा चैलेंजेस रहे मैम फॉलोअप में, क्योंकि आफ्टर डिस्चार्ज बेबी रिच्ड इन योर होम, तो हमको होम से बेबी को लेकर के आना है फिर से हॉस्पिटल, क्योंकि अर्ली बीएफ वाला प्रोजेक्ट है उसमें तो हमारा पूरा हॉस्पिटल सेटअप था कि चलो हमको कराना है। पर इसमें फैसिलिटी फॉलोअप में ज्यादा टास्क था कि कैसे हम बेबीज को आफ्टर डिस्चार्ज फिर से हॉस्पिटल लेकर के आए, वो भी 5 टाइम 1 ईयर में 5 टाइम्स बेबी को फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। तो इसके लिए हमने पेरेंट्स को काउंसिल किया, फिर उनका जो कांटेक्ट नंबर है लिया, कांटेक्ट नंबर मतलब कि जो हम लोगों से ऐसा नंबर लिया कि जो चालू रहे हर वक्त, कि हमको रिमाइंडर कॉल कर सके कि आप फॉलोअप के लिए आइए। और आप जब डिस्चार्ज देते थे तो उस समय उनको पूरा बताया कि इस डेट में आपकी काउंसलिंग आपकी फॉलोअप की डेट है, इस डेट में आना है। फिर क्या हो, फिर जब कुछ लोग फॉलोअप के लिए आते थे, फर्स्ट फॉलोअप में आए, सेकेंड में नहीं आए, फिर थर्ड फॉलोअप में आए, तो हम उनको पूछते थे कि थर्ड फॉलोअप में आते थे तो पूछते थे कि आप दूसरे सेकेंड फॉलोअप में क्यों नहीं आए। तो वो लोग बताते थे कि हमारा कि आने का प्रबंध नहीं था, गांव है, गांव में बसें नहीं चलती हैं, फिर पैसे नहीं थे हमारे पास। फिर कोई किसी से जवाब मिला कि हमको डेट भूल गए थे हम लोग। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ डेट तो थी पर उस दिन हमको काम था, हमारे पति नहीं थे। तो इन सब प्रॉब्लमों जो प्रॉब्लम हमें समझ आई उन सबको हमने ऐड किया, फिर उनको मतलब बताना चालू किया कि जैसे कि आपकी डेट यदि निकल जाती है, जैसे 5 अगस्त की डेट है, 5 अगस्त को आप नहीं आ पाए तो आप 2 दिन बाद भी आ सकते हैं, 2 दिन पहले भी आ सकते हैं। यदि कोई काम रहता है तो पहले आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पति के साथ आए, आपकी सास है, ननद है, उनके साथ भी आ सकते हैं आप। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए बताया कि 108 में आप कॉल करके आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इशू मतलब इस प्रकार से उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको बताया। तो अब और कॉल में रिमाइंडर भी दे देते हैं कि 2 दिन पहले से कि आपका इस डेट में फॉलो अप है तो आपको आना है करके, और एक कार्ड भी देते हैं उनको, तो उसमें सारी उनकी डेट्स लिखी रहती हैं। थैंक यू सो मच उमा जी। आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, जिससे काफी लोगों को बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि चैलेंजेस भी आते हैं जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट हम लोग लगाते हैं। हमारे बीच में सुशील सर दिखाई दे रहे हैं, सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सर भी अपना कुछ इनपुट दें। Am I audible? यस Hello? यस सर। सो पहले तो मेरा आप सबको बहुत बधाई, आप लोगों का एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। और मैं थोड़ी क्षमा चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि किसी कारणवश मैं किसी जगह फंस गया था और मैं ये सेशन शुरू से अटेंड नहीं कर पाया। बट मैं आप सबके नर्सेस के जो एक्सपीरियंस मैंने थोड़े थोड़े देखे, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक चैंपियन है, आप लोग सही में जहाँ पे आप लोग वर्क कर रहे हैं। और किसी हद तक मांडा टीम मेरी बहुत क्लोज है, क्योंकि शुरू में हम लोग वहां गए थे, और मांडा टीम की जो एक्सपीरियंस और जो उनके अचीवमेंट है वो हमें आज भी बहुत प्राउड फील करते हैं।
Even Stella is also there on the audience list, I can see. And Uma and their team. In fact, Uma is very humble. इनकी टीम और इन लोगों ने इतनी अच्छे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के चेंजेस किए हैं कि इन लोगों का एग्जाम्पल आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी पब्लिश हुआ QED जर्नल में। और आप सारे नर्सेज जो आज आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बाकी नर्सेज और बाकी डॉक्टर्स को इंस्पायर करेगा और आपके जो लर्निंग्स हैं वो उन लोगों को हेल्प करेंगे और इतने पेशेंट्स को हेल्प करेंगे। सो आई थिंक इट इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी हियर। Mandla team from last 4 years is doing excellent job. In fact, ये 5th year है इनका और despite COVID ये लोग हमेशा हमारे साथ connected रहे हैं और इनके जो improvement projects हैं और इनकी learnings हैं वो बहुत ही सुदृढ़ हैं इनकी मेहनत की वजह से। और जो हमने इनसे सीखा, इनफैक्ट आज ये हमें भी सिखा रहे हैं कि मरीज के साथ बैठ के उनकी हल्की सी प्रॉब्लम को एनालिसिस करके आप अपना काम भी कम कर सकते हैं और प्राउड फील भी कर सकते हैं। सो आई थिंक श्रीजा, दिस इज अ वेरी आई एम रियली हैप्पी टू सी such seasoned quality improvement champions here on the platform, Charushila and all, and your they have shared their experience, and I'm pretty sure some of the your audiences are from across the country too. So although it is Hindi, but I hope they would be able to understand some of the your learnings from here, and I am pretty confident that these nurses would and healthcare workers would inspire all other nurses. And मेरी आपसे NQSN की तरफ से यही रिक्वेस्ट है और शीजा भी यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आपकी कोई भी समस्या है या कोई बॉटलनेक है तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। आप हमसे जब भी बोलेंगे हम और एक्सपीरियंस होल्डर्स को या आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सो दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स और इसमें कोई भी चैलेंज है, आप अपना वर्क प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपके लिए ओपन हैं। और आप हमारे वेबसाइट पे, हमारे ईमेल आईडी पे या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड पर्सनली उमा, 3 cheers to you and your team. I'm really proud of all of you and you are doing a good job. Shrija, the floor is yours. Sorry, मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, although I was a bit late, but best of luck and good luck to all of you. Yeah, Shrija. Thank you so much. आप लोगों के एक्सपीरियंस सुन के हम काफी मोटिवेट हुए हैं, स्पेशली गीता रानी जी, चारुशीला जी और अश्विनी जी के, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे काम कर रहे हैं, प्राथमिक I'm sorry, चारुशीला, गीता रानी, and वो मैं आप लोगों का सुन नहीं पाया, but I have that your quality improvement project with me and I have gone through it, but because मैं late आया था, so my apologies, I'm sorry for it, but again all people who are working on the front line, especially front line, इन लोगों का वर्क बहुत चैलेंजिंग है और आप लोग जो डिलीवर कर रहे हैं वो 1 या 2 मरीज के लिए नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए है, एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू। या श्रीजा, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका विजन जो है आप लोगों के थ्रू ही सार्थक हो पाएगा। जो आप आशा वर्कर इसमें जुड़े हैं वो बहुत अच्छा है और आपसे बाकी के लोग भी मोटिवेट हो पाएंगे और आपसे भी हम लोगों को काफी सीखने को मिला, काफी इनपुट्स मिले कि हम डायरेक्ट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेंटरिंग इन बिटवीन कर सकते हैं। गीता मैम के एक्सपीरियंसेस से बहुत अच्छा हुआ कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत बढ़ा। तो ये इन टोटल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग था आप लोगों का, एक बहुत अच्छा डिस्कशन था कि आप लोगों ने कैसे उसको प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव केयर में QI को इम्प्लीमेंट किया, जो कि हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि QI को आपने फील्ड में जाके कैसे इम्प्लीमेंट किया, फील्ड में आपने किन किन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटाइज किया और धीरे धीरे करके आपके साथ के साथ हम इसको और अच्छे से और भी लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से हम धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डॉक्टर कोमल। Thank you so much, ma'am, for moderating this session. And I would like to thank all the panelists for sharing their experiences and giving us time, not even this session, only before this session, for recording of the videos. And thank you so much for this. So now I request all the participants to please fill a short feedback survey for us so that we can improve this platform with the help of... And yes, Komal, just 1 minute. You can also request the participants if they want to give any feedback
or any suggestions to how this platform can be beneficial for them, especially our ASHA A&M workers? Because yes, quality improvement is very, very dependent on them also. In fact, Mandla वाला टीम का भी काफी वर्क आशा A&M के साथ ही शुरू हुआ था. Yes, sir. तो इसीलिए Komal, you can give them that site, and we'll be very happy to help you or to provide this platform for benefit of all of us and our patients. Yeah, Komal, please continue. Yes. So you can share your feedback to us using this QR code or the link which is available in the chat section. So it'll give you 5 minutes to fill out this feedback form. Once you complete it, just click on the submit button. So those who want to receive the certificate of participation for this session, you can either scan this QR code or click on the link which is there in the chat section. So in the interim, if there is any comment from the participant. I'll just share that, well, it was a very satisfying experience for us mentors, me and Stella, for mentoring the Mandla team. Very enthusiastic team. You can see how Uma was telling her experience for last 4 or 5 years. And they have, the whole team is wonderful. So great things happen with quality improvement. And most of the people who adopt quality improvement enjoy it. Of course, there are challenges. As she rightly put, the snake and ladder example is very, very apt. ये तो हम example हमें भी पता नहीं था. And yes, we also face those challenges. So very nice. Yeah. So this was such a enriching session from the panelist. So I would like to thank everyone for staying in this session. We have maintained the participants the same from the beginning. So that's a wonderful experience with us. And thank you so much, everyone. Ms. Geeta Rani ji, Ms. Ashwani ji, Ms. Charushila ji, Ms. Uma Devi ji, and her team also. Her team also joined from the field. Thank you so much, everyone, for joining us today and sharing your experiences with us. We will continue this journey, and you can reach to us anytime, either
on our website. You can mail us, you can call me or our team, Dr. Rahul and Dr. Sonam. You can call anyone and we will be happy to help you in your future projects.